اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ تغابن کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو بڑے اہم رشتوں سے خبردار کیا ہے۔ دو اہم رشتے بیویاں اور اولاد ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی، چچا بھی، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنے قریبی رشتے ہیں۔ بیویاں شریک حیات ہیں، ہر وقت وہ گھر کے اندر گھر کی حفاظت کرتی ہیں، کام دیکھ بھال گھر کے امور انجام دیتی ہیں، انسان کے تمام رازوں سے واقف ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے اولاد جو کہ بہت محبوب ہوتی ہے ہر ایک کو۔ فرمایا ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچ کر رہو، ان سے ہوشیار رہو۔ بعض اس کے دو صورتیں ہیں، عام حالات ہیں اور خاص حالات ہیں۔ عام حالات میں یہ ہے کہ ایک طرف خواہشات نفس ہیں، دوسری طرف اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ اگر بیویاں اور اولاد یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے تو فلاں فلاں چیز ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے خلاف اسے اکساتی ہیں، تو اس سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ وہ کیسے خیر خواہ ہیں پھر وہ؟ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، دو ملازم ہیں، ایک ہی رینک کے ہیں ایک دفتر میں، ایک ہے وہ خدا خوفی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتا ہے اور اپنے محدود وسائل میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، بیوی بچوں کا گزارا کرتا ہے تنگی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ۔ دوسرا ہے وہ بھی اسی رینک کا ہے لیکن ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور دوسرے اس کے بچے بیویاں عیش عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب وہ جو خدا ترسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی بیویاں اور بچے اگر اسے تانا دیں کہ دیکھو اس کے گھر میں تو یہ ہے، اس کے گھر میں تو فلاں چیز ہے، وہ تو ایسے، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور اسے مجبور کریں کہ وہ بھی وہی کام کرے جو دوسرا کر رہا ہے، تو وہ پھر کیا ہے؟ اس کے دشمن ہیں، اس کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچ کر رہو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی، اللہ کا خوف، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت اگر ناجائز طریقے سے انسان حاصل کرے تو اس نے کیا کمایا، آخرت کے لیے اس نے کیا سامان کیا۔ اور دوسرے خاص حالات میں ہے۔ خاص حالات میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو رہا تھا، یہ جن حالات میں آیات نازل ہوئیں کہ والدین جو ہیں وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، بچے نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ چھوڑ دے اللہ کے اس راستے کو اور آبا و اجداد کے راستے کی طرف واپس آ جائے۔ تو یہ صورتحال ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی تھی، بیوی اور خاوند کے درمیان بھی تھی۔ تو فرمایا کہ پھر وہ تمہارے دشمن ہیں، پھر وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لہذا ان سے بچو اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کو ہی مقدم رکھو۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم
अफ़्व दरगुजर से काम लो, यानी नरमी से काम लो, उनकी इस्लाह की तरफ तुम अगर तवज्जो दो तो फरमाया फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह भी तो दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है। मतलब है कि ऐसे हालात में उनके साथ सख्तगीर ना हो जाओ, बल्कि हिकमत के साथ रवैया अख्तियार करो। यानी तुम्हारे अपने घर के हालात भी जो हैं पुरअमन रहने चाहिए, तभी इस्लाम मुमकिन है। ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ खाना पीना भी अलग कर लो, बोल चाल भी छोड़ दो, ये तो फिर दुरुस्त नहीं है। यानी ज़रा बर्दाश्त के साथ, अफ़्व दरगुजर के साथ उनके साथ मामला रखो। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, यकीनन तुम्हारे माल और औलाद फितना है, यानी ये सब तुम्हारे लिए आजमाइश है, अल्लाह इनके ज़रिए भी तुम्हें आजमा रहा है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, जबकि बड़ा अजर तो अल्लाह ही के पास है। अल्लाह ही वो ज़ात है जो बड़े अजर से नवाजने वाला है, लिहाजा उस अजर की तरफ तुम्हें तवज्जो रखनी चाहिए। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, और अल्लाह से डरो जिस हद तक तुम्हारी इस्तात है। देखिए अल्लाह ने कितनी नरमी रखी है हमारे साथ। एक जगह फरमाया कि इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से इस तरह से डरो जिस तरह डरने का हक है। वो एक मयार है, मुफस्सिरीन कहते हैं उस मयार की तरफ बढ़ते रहो हमेशा, यानी अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उसे डरने का हक है। लेकिन अगर कुछ कमी है तो बहरहाल जितनी तुम्हारी इस्तात है, यहाँ ये हुक्म दिया जा रहा है, जितनी इस्तात है अल्लाह से डरते रहो। वस्माऊ, और सुनो, यानी हक बात को सुनो। वाती, और उसकी इताअत भी करो, यानी हक को सुनो भी, उसकी तरफ रग़बत भी अख्तियार करो और इताअत करो। वह अनफ़िक़ू, और खर्च करो, यानी जितने भी अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खैरुल लिअनफुसिकुम, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, यही रवैया अल्लाह को पसंद है। वमन युक़ा शुह नफ्सिही, और जो दिल की तंगी से बच गया, यानी दिल तंग ना हो, दिल कुशादगी की तरफ माइल हो, ना भी हो तो फिर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए फूटी कौड़ी भी अगर खर्च करोगे, अल्लाह जज्बों को देखता है, नियतों को देखता है। वो है ना बड़ा मशहूर वाक़या, एक दफ़ा वो जो ग़ज़वा तबूक का बड़ा मार्का था, बहुत ज़रूरत थी इसार की, जान की भी माल की भी। कोई घर का सारा सामान बांध के लाया, कोई आधा सामान बांध के लाया, और एक ऐसा भी था, ऐसे सहाबी भी थे कुछ भी नहीं था उनके पास, रोज़ मजदूरी करते थे, ताज़ा करते थे, ताज़ा खाते। उन्होंने क्या तरकीब निकाली देखें, रात भर, यानी दिन की मजदूरी के अलावा रात को फिर एक यहूदी के यहाँ उसके बाग को सैराब किया, कुआं खींचा, सैराब किया, और खिजूरें मिली सुबह, वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो और बयान किया कि या रसूलल्लाह मैं तो यही कुछ कर सका हूँ, इतनी ही मेरी इस्तात थी, इतनी ही तौफीक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई अपने उस सरफरोश की जानिसारी पर। फरमाया ये सारे ढेर पर भारी, मस्जिद नबवी के सेन में जो ढेर लगा हुआ था, फरमाया इसके ऊपर बखेर दो, ये सब पर भारी। तो अल्लाह ताला तो शक्लों को नहीं देखता, मालों को नहीं देखता, वो तो जज्बों को देखता है, नियतों को देखता है, इरादों को देखता है। तो इसलिए फरमाया जा रहा है कि वमन युक़शुह नफ्सिही, दिल की तंगी ना हो, जो शख्स दिल की तंगी से बच गया, फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही कामयाब है, वही फलाह पाने वाले। इन तुक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन, अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे, युज़ाइफ़ु लकुम, वो बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें वापस दे देगा। देखें ये अल्लाह ताला फरमा रहा, क्या शक हो सकता है इसमें। अल्लाह को कर्ज, हालांकि जो कुछ हमारे पास है अल्लाह ही का दिया हुआ है, उसी ने दिया हुआ। फरमाया ना वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, तुम्हें जो भी कोई नेमत हासिल है वो अल्लाह ही की अता करता है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो शख्स अल्लाह को कर्ज देगा, अच्छा कर्ज, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इस तरह से कि दिखावा ना हो, अपनी नामवरी ना हो, तो फिर ये कर्ज हसना शुमार होता है। अल्लाह को ये पसंद है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको बढ़ा चढ़ा कर लौटाएगा, और उस मौके पर भी लौटाएगा जब इंसान ज़रूरतमंद होगा, यानी आखिरत में किस तरह से इंसान फिक्रमंद होगा। युज़ाइफ़ु लहू लकुम, वो तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर वापस करेगा। और दूसरा इनाम ये भी
वयग़फ़िर लकुम, तुम्हारी मग़फ़िरत भी करेगा। ये कितने अच्छा सौदा है ये, यानी कितना अच्छा कर्ज है ये, अल्लाह को रास्ते में खर्च करना। वल्लाहु शकुरुन हलीम, और अल्लाह तो बड़ा कदरदान है। देखिए शुक्र दोनों तरफ से है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं नेमतों की बुनियाद पर, उसने हम पर जो एहसानात किए। अल्लाह हमारा शुक्र अदा करता है, उस शुक्र का मतलब है कदरदानी करता है, यानी हमारे अच्छे नेक रवैये को, अमल को, नियतों को कदर की निगाह से देखता है और बुर्दबार है। आलिमुल गैबि व शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह हाजिर और गायब सबका जानने वाला है, अजीज़ है, हकीम है, ज़बरदस्त है और साहिब हिकमत है, यानी उसके हर फैसले में हिकमत है, लिहाजा उसके फैसलों पर राज़ी रहो। तुम्हारी जो भी कैफियत है वो उसके इल्म में है, यानी हाजिर गायब हर चीज़ का वो जानने वाला है। तो यही चीज़ें हमारे अंदर मौजूद रहनी चाहिए। अल्लाह की सिफ़ात का जितना हमारे अंदर इदराक होगा उतना ही हम अल्लाह की तरफ माइल होंगे, अल्लाह की इत्ताअत और बंदगी करने वाले होंगे। अल्लाह ताला आयात को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन, या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजतल मुस्लिमीन। ऐ परवरदिगार, हमारे भाई कारी साहब मोहतरम की नानी मोहतरमा और हाफिज़ तैयब साहब की वालदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, उनकी ख़ताओं को भी नेकियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील बना, उनके पसमानदगान को उनके लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह हमें भी अपनी इस वक्त की तैयारी की तौफीक अता फरमा। यकीनन हमें तेरी तरफ पलटना है। या अल्लाह जिस तरह तूने हमारी बेहतरीन सूरत बनाई है, तेरा दावा है खुद ही, उसी तरह हमारी सीरत को भी बेहतरीन बना। या अल्लाह हम तुझे से फरियाद करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।